اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جی، سورہ آل عمران کا الحمدللہ چوتھا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں جو پچھلی دفعہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ توحید پہ زیادہ اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا، اور یہودیوں کا یہ کانسیپٹ کہ ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ قوم ہیں، ہمیں کہاں دوزخ کی آگ پکڑے گی، تو توحید کا بیان ہوا تھا زیادہ۔ یہاں پہ پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت رسالت کی اہمیت کا ذکر شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سا یہاں دیکھ لیں۔ پہلے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ سورہ آل عمران غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کے واقعات بھی ہیں، اور پھر اسپیشلی اس میں جو نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تھی، اس پر تقریباً 32-35 آیات اس میں ہیں، تو اس کا ذکر یہ بالکل اسی رکوع میں شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہوئے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ مدینہ میں یہود قبائل آباد تھے جو اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ قوم، اور بس پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو اس پہ بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، اسپیشلی یہودیوں کا، اس وقت یہودیوں کا یہ پہلی جو آیت ہے نا، یہ شاید وہ وقت نجران کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اگلی آیت سے وہ عیسائیوں کے ساتھ جو تعلق والا ذکر ہے وہ آگے شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ اسپیشلی یہودیوں کو خطاب ہے، لیکن وہ تو قرآن تو آفاقی کتاب ہے نا، قیامت تک آنے والی کتاب ہے، یہ سارے انسانوں کو خطاب ہے، سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو اوریجنل خطاب ہوا کہ قل، آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم، یہ کنتم کون ہے؟ یہ یہودی ہیں، اوریجنل یہودیوں کو کہا گیا ہے، لیکن اب تو ہمیں بھی کہا گیا ساری انسانوں کو، جو عیسائیوں کو، سارے انسانوں کو کنتم میں، اب تو یہ ساری انسانیت شامل ہے۔ قل ان کنتم، اگر تم ہو، ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے کانا یکونو سے کنتم تحبون اللہ، احب یحب محبت کرنا، احب یحب محبت کرنا، کہ تحبون تم محبت کرتے ہو اللہ سے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محب بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم محبین ہیں اللہ کے پسندیدہ قوم بھی ہیں۔ تو یہ فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس دعوے میں سچے ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء جو گزر گئے، اناجیل نازل ہو گئیں، یا تورات ان کے پاس تھی، تورات یا ان کے صحائف جو ان کے تھے، سب کچھ جیسا بھی ہے، لیکن اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اتبع یتبع، اتباع کرنا، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، فاتبعونی، یہ نون جو ہے نون وقایا ہے، فتبعو، تم اتباع کرو، یا لگانا ہے، یا اکیلی لگ نہیں سکتی تو نون لگایا، نون وقایا، تو فتبعونی، تم میری پیروی کرو گے۔ تو یہ اب آفاقی نظام ہے، یہ خطاب، یہ جو پیغام ہے آفاقی ہے، سارے انسانوں کو، سارے دنیا کے انسانوں کو، ہمیں، اگر ہمیں بھی دعویٰ ہے محبت سے، اللہ کی محبت کا، رسول کی محبت کا ہمیں بھی دعویٰ ہے، ہمیں بھی عشق رسول کے وہ دعوے دار ہیں، اور اللہ کے عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کا پیمانہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے۔ اللہ سے محبت کے اگر جو بھی دعوے دار ہے، یا رسول سے محبت کے جو بھی دعوے دار ہے، اس کا پیمانہ ایک ہی ہے کہ اتبعونی، اتباع کرو گے تو تمہارا محبت بھی، پھر آگے اس کا جواب بھی آ گیا ہے کہ پھر ہوگا کیا کہ یحببکم اللہ،
फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वही अहब्बा युहिब्बु, वही जो दो बा है ना, अहब्बा में दो बे है, यहाँ पे ये इस में उनको अलग कर दिया। युहिब्बुकुमुल्लाहु, सीगा वही है, युहिब्बुकुम, तुम्हें अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाह हो, अल्लाह के ऊपर पेश है, इसका फाइल जो है अल्लाह। युहिब्बुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और फिर अगली बात भी, वयगफिर लकुम, अगफरा युगफिरु, माफ करना, व यगफिर लकुम, तुम्हारे लिए माफ कर देगा। पहले भी जिक्र किया कि गफरा यगफिरु के साथ लाम का वो प्रपोजिशन लगती है, सिला, सिला इसको कहते हैं अरबी में। लाम, ये गफरा रब्बिगफिर ली, लाम लगती है, तो यगफिर लकुम, तुम्हें माफ कर देगा, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह। इसका क्या मतलब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होगी तो गुनाह कैसे माफ होंगे? अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का मतलब है कि सारे अहकामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देंगे ना, तौबा का तरीका बता देंगे, अगर गुनाहों में किसी का हक मारा हुआ है वो भी तरीका बता देंगे कि तुम हक कैसे अदा करोगे। हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैरवी की जाएगी तो हर किस्म के गुनाह, हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद की माफी का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएंगे ना, जब इत्तबा की जाएगी तो फिर सारे अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये पैमाना है जी, ये स्टैंडर्ड है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही दरअसल अल्लाह की पैरवी है। और जगह पे है ना, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, कुरान पाक में, जिसने रसूल की इत्तबा की, उसने, रसूल तो बताता ही वही है जो अल्लाह बताता है, जिसने रसूल की इत्तबा की उसने इत्तबा की। और फिर इत्तबा भी कैसी कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्याल में बुखारी और मुस्लिम की मशहूर हदीस है कि मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरन फहुव रद्दुन, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मन अमिल अमलन, जिसने कोई ऐसा अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर हमारा कोई हुक्म न लगा हो, हमारी मोहर न लगी हुई हो, कोई ऐसा काम जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की या फरमुदात की बताने की मोहर न लगी हो, फाहुवा रद्दुन, वो रद्द है। और वो मशहूर हदीस हमने पढ़ी हुई है कि मन अहदस फी अमरिना हादा फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे इस अमर में किसी किस्म की कोई फालतू चीज डाली, मन अहदसा, जिसने हमारे इस फी अम्र ना हाजा, इस अमर में, अमर क्या, ये दीन में, फी दीन ना हाजा, फी अम्र ना हाजा का मतलब है फी दीन ना हाजा फवरतुन, जो डाली फी दीन ना, ये आसान सा फार्मूला है पहचान का कि कौन सा काम वो अहदसा फी अम्र ना हो जाएगा और कौन सा काम नहीं होगा। हज एक अल्लाह पाक का हुक्म है, हज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं, वो दीन है हमारा। उसमें किसी किस्म की आगे पीछे ज्यादती, जैसे फरमा दिया दीन का जो हुक्म, जैसे लगा दिया, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे चढ़ के आ गए हैं। अब ऊंट पे बैठना दीन नहीं है, उस अमर को हासिल करने के लिए जहाज पे चले जाओ, पैदल चले जाओ, किसी सवारी पे चले जाओ, वो दीन नहीं है। दीन तो वो हमारा हज है, फी अम्र ना हादा। ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे बैठ के हैं, तो मैं जहाज पे बैठ के जा रहा हूं, ये दीन नाम है। ये फालतू काम जो नया काम कर, कहते हैं ना पंखा लगा हुआ है, ये भी तो नया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, ये मेरा दीन नहीं है। ऐनक लगा रहा हूं, ये मेरा दीन नहीं है। तो जहाज पे जो बैठ के जा रहे हैं वो फी अम्र ना में नहीं है, वो लिद्दीन है, वो दीन के लिए कोई नई बात इजाद की। ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये कोई तरीका हमने बनाया हुआ है, शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे करते थे। तो ये दीन के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाएगा वो नहीं होगा, अहदसा में शामिल नहीं होगा। दीन में जो नई चीज़ डाली जाएगी, मिसाल के तौर पर हमारी नमाज है, नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, ये नवाफिल भी बता दिए, ताज्जुद भी बता दिए। आजकल एक नई नमाज भी ईजाद हुई है, वो नमाज कादरिया उसको कहते हैं। नए चीजें ईजाद कर दी हैं लोगों ने, ये फी अमरे ना की बात हो जाती है। अजान
अजान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत बिलाल खड़े होकर अजान देते थे, अब हम लाउड स्पीकर पे अजान देना ये वो हो जाएगा कि अहदसा में शामिल हो जाए। नहीं भाई, दीन में इजाफा नहीं है, वो दीन के लिए आवाज को दूर पहुंचाने की, दीन के लिए एक तरीका इख्तियार किया गया। दीन में अजान में हमने कोई तरीका इख्तियार नहीं किया। तो दीन वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के चले गए। उसके अलावा जो भी है वो फहुआ रद्दुन, ये दोनों हदीसें मैंने पढ़ दी कि मन अहदथ फी अमरिना हाजा, जिसने हमारे इस अम्र में कोई भी इजाफा किया, फहुआ रद्दुन। और जो पहले हदीस पढ़ी, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर हमारी मोहर न लगी हो, फहुआ रद्दुन। तो फत्तबिऊनी, इत्तिबाए रसूल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत का दावा कहाँ से साबित होगा? कितनी इत्तबाए रसूल कोई कर रहा है। और जो फिर इत्तबाए रसूल करेगा तो फिर अल्लाह पका युहिब्बुकुमुल्लाह, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कुल, अल्लाह का हुक्म आ रहा है कि फिर अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और उनके गुनाह भी माफ़ कर देगा हर किस्म के। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर है। गफूर पहले भी हमने कहा कि ये मुबालगे का सीगा है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। और रहीम भी मुबालगे का सीगा है, ये बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो फिर उसी के साथ मिलते अगली आयत में, कुल अतीउल्लाह व रसूल, आप फरमा दीजिए कि अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूल, कई जगह वहाँ पे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल भी आया है। और पहले वो मैंने आदमी मन अतार रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ऐसे भी है, अहादीस में भी शायद ऐसे है कि रसूल की, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। जो अब ये यहूदियों का, ये दो आयतें जैसे क्या है कि ये यहूदियों को कहा जा रहा है और सारे उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है। अब तो कुरान पाक हमेशा के लिए, अगर फ़ैन तवल्लाओ, अगर ये यहूदी इसके बावजूद भी, ये सारी बातें समझने के बावजूद भी, फ़ैन तवल्लाओ, तवल्ला या तवल्लाओ हमने पढ़ा हुआ है, ये तवल्लाओ है ओरिजिनली, ये तवल्लाओ एक ते हज़फ है, मुंह फेर लेना, हमने पढ़ा हुआ है। तवल्लाओ या तवल्ला या तवल्ला हमने पढ़ा हुआ है, मुंह फेर। अगर इसके बावजूद भी आप मुंह फेर लेते हैं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ये बहुत अहम बात है। फ़इन्नल्लाह तर्जमा सबको आता है, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अहब्बा युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल काफिरीन, क्या मतलब? अल्लाह से मोहब्बत जो मर्जी है करते जाओ, जब तक रसूल की पैरवी नहीं करोगे कुफ्र पे रहोगे। सिर्फ अल्लाह को मान लेना, ये अल्लाह बता रहा है कि अगर अब भी मुंह फेरेंगे, दावा तो उनको अल्लाह को मानने का है और अल्लाह से मोहब्बत करने का है, उस मोहब्बत के बावजूद अगर रसूल से मुंह फेरेंगे ना, अगर फैन तवल्लाओ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, दोनों की इताअत करनी है। अगर अल्लाह को रसूल से, अब तो रसूल की मुंह फेरने की बात है, अल्लाह को तो वो मानते हैं ऑलरेडी, अल्लाह को तो वो मानते हैं। क्यों रसूल को नहीं मानेंगे? फ़ैन तवल्लाओ, अगर मुंह फेरेंगे किससे? रसूल से। ये रसूल से मुंह फेर रहे हैं। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह फतवा लगा रहा है कि ये कुफ्र है। रसूल से मुंह फेरना, तौहीद और रिसालत दोनों, ये हमारा दीन है। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं फरमाता। ये अब जो अगली आयतें आ रही हैं, शायद ये नजरान के ईसाइयों के वफद के आने के साथ ही ये नाजिल हुई है, उन्हीं को बयान किया हुआ है। आगे फिर आयत मुबाला भी आ जाएगी मेरा ख्याल अगले रकू में या उससे अगले रकू में। ये अगली आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमराना अलल आलमीन। इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह, इस्तफा यस्तफी का मतलब क्या होता है? इस्तफा यस्तफी, चुन लेना, पसंद कर लेना। बहुत सी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को यूं उठा लेना, चुन लेना, पसंद करके उठाता है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्तफ़ा है, वो भी यहाँ से चुना हुआ, पसंद किया हुआ। तो इन्नल्लाह हस्तफा, अल्लाह ने चुन लिया है, पसंद कर लिया है, किसको? आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान, ये चार अल्लाह पाक ने नाम लिए हैं, आदम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, आल इब्राहीम, इब्राहीम की आल, उनके कबीला, उनकी औलाद, उनके, और या आल इमरान, और इमरान की औलाद, ये चार। अभी इमरान की बात करते हैं। आल इमरान अलल आलमीन, सारे आलमों पर, सारे जहानों पर अल्लाह पाक ने इन चार लोगों को, अल्लाह ने चार हस्तियों को, इनकी आल को स्पेशली अल्लाह पाक ने चुन लिया है। ये आदम
पहले इंसान है, सारे नबी उन्हीं की औलाद हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम की आमद हुई और नूह अलैहिस्सलाम ने जब बुत परस्ती शुरू हो गई या अल्लाह को लोग भूल बैठे, दीन को छोड़ बैठे, नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दीन के अहया के लिए कोशिश की, बहुत थोड़े लोग इनके साथ ईमान लाए और फिर अल्लाह पाक ने उस सारी कौम को गर्क कर दिया। मशहूर है नूह अलैहिस्सलाम की सारी इंसानियत, वहाँ ऐसे बयान है कि सारी इंसानियत गर्क हो गई, जितने इंसान थे उस वक्त थे ही थोड़े इंसान, आदम अलैहिस्सलाम के बाद चंद हजार साल बाद, पता नहीं कितना अर्सा बाद। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाकी इंसानियत चली है, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, ये दूसरे आदम है। फिर इन्हीं की औलाद में से इब्राहिम है। फिर आले इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में तो याकूब और इसहाक और हज़रत इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से बेशुमार अंबिया, जिनको बनी इसराइल कहते हैं, सारे उलमाए बनी इसराइल और अंबियाए बनी इसराइल, उलमा भी अंबियाए बनी इसराइल, सारे आला इब्राहिम में से हैं। वह आला इमरान, इमरान हमारे कुरान में दो इमरान का जिक्र है। एक तो अभी आगे भी आ रहा है, अगली आयत में भी इमरान का जिक्र आ रहा है। एक इमरान है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और उनके भाई का नाम हारून था। हारून और इनके मूसा के वालिद का नाम इमरान है। और दूसरे इमरान जिसका जिक्र अगली आयत में फिर आएगा, दोबारा ये 2 आयतों बाद फिर आ रहा है, वो इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, जिनका जिक्र अभी शुरू है, अहले नजरान, जिसलिए कहा है कि ईसाइयों का जो वफ्द आया था। अच्छा, नजरान आपको अंदाजा है, हिजाज के नीचे, नीचे तो सऊदी अरब का जो नक्शा है उसके नीचे बिल्कुल साउथ में यमन है ना, उससे ऊपर वाला इलाका नजरान है, उससे ऊपर हजाज कहलाता है, जो जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो नजरान के इलाके में बहुत ज़्यादा ईसाई आबाद थे, वहाँ से लोग आए थे, बड़ा कबीला था ईसाइयों का, बड़ा लश्कर। वो कहते हैं कि लाखों का वो जंगजू तैयार कर सकते थे, इतने उनकी कौम थी। तो वो तीनों जो बड़े थे उनके सरदार थे, वो तीनों सरदार आए थे मदीना में और 60-70 लोगों को साथ लेकर आए थे मदीना में। फिर उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी। तो ये उनको सुनाया जा रहा है कि अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम और आले इमरान को चुन लिया। आले इमरान, अब मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का जिक्र हो या मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का जिक्र हो, ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम की तो औलाद में उसको तो मानते हैं ना, वो भी बनी इसराइल में से है ना, मूसा अलैहिस्सलाम भी। तो इनको चुना हुआ है खुसूसी तौर पर, अल्लाह पाक ने लोगों की हदायत के लिए इन लोगों में चुना हुआ है। और अगली आयत इसके साथ ही जुड़ी हुई, ज़ुर्रियतम बादुआ मिन बाद, ये खास बात है कि ये 4 लोगों को अल्लाह पाक ने जिक्र किया है और उनकी औलाद को जिक्र किया है कि इनको अल्लाह पाक ने चुना हुआ है इंसानियत की सरबराही के लिए, उनकी हदायत के लिए अल्लाह पाक ने चुना हुआ है। लेकिन आगे ज़ुर्रियतम बादुआ मिन बाद, उनमें से बादों की औलाद है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे ना, तो उसकी ये बुनियाद बताई जा रही है कि ये सारे के सारे जो चुने हुए लोग हैं आपस में एक दूसरे की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तो सारे औलाद है, नूह अलैहिस्सलाम की भी आदम सानी उनको कहा जाता है, उनकी औलाद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सारे ये आगे ईसा अलैहिस्सलाम, इमरान, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान है या मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान है, ये भी उन्हीं की औलाद में से है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, हारून मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं। तो ये सारे आपस में इनका रिश्ता क्या है, ये एक दूसरे की औलाद हैं। जिस तरह सारे इंसानों की औलाद हैं, इस तरह ईसा इब्ने मरियम भी अल्लाह का बेटा नहीं है, वो औलाद है, मरियम की औलाद है। वो खुसूसी तौर पर, मौजज़ाना तौर पर उनकी पैदाइश हुई है। आगे अल्लाह इसी रकू में आगे अल्लाह पाक फिर बयान फरमाएंगे कि मौजज़ाना तौर पर उसकी पैदाइश हो जाने का ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह का बेटा हो गया। मौजज़ाना एक और मौजज़ाना पैदाइश का आगे जिक्र आ रहा है, इसी रकू में आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये ज़ुर्रियतम बादुआ मिन बाद के बाद, इनमें से बादों के औलाद हैं, ये सारे एक दूसरे की औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तुम जो कुछ कह रहे हो ना, अल्लाह को अल्लाह का बेटा उसको कह रहे हो, अल्लाह ये भी सुन रहा है और समीउन अलीम, और खूब जानता भी है कि कौन किसकी औलाद में से कौन किस तरह पैदा हुआ है। अब अल्लाह पाक आगे एक किस्सा बयान कर रहे हैं,
उसको प्रिलिमिनरी किस्सा उनसे नजरान के ईसाइयों से डिस्कशन के लिए कि इस काल तुम याद करो, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है, बनी इसराइल के जिक्र में किया कि इसका जिक्र जब आता है इस काला, इसका मतलब है कि उस वक्त को याद करो। इस काला तिम्राअतु इमरान, ये इमरान का जिक्र आ गया। इस काला तिम्राअतु इमरान, इमराअतु किसको कहते हैं? इमरातुन औरत, बीवी। इमरातु इमरान, इमरान की बीवी। इस कालत, काला यकूलो, काला उसने कहा, कालत उसने, औरत ने कहा, किसने? इमरातो इमरान, इमरान की बीवी ने जब कहा, रब इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी, रब इन्नी, रब मेरे रब, रब्बे के नीचे जेर लगी हो आमतौर पर तो उसका उसमें या हज़फ शुदा है, ये रब्बी है, मेरे रब, पहले भी जिक्र किया हुआ है। रब्बे के नीचे जेर बता रही है कि ये रब्बी है ओरिजिनली। रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, नजर तो लका तेरे लिए नजर मानी है, माफी बतनी जो मेरे बतन में है। ये प्रेग्नेंट थी, इमरान की बीवी हन्ना नाम है इनका, नाम हमारी तफासीर में जिक्र है हन्ना, इस खातून का नाम हन्ना है। कुरान में जिक्र नहीं है, कुरान में तो एक औरत का जिक्र है नाम के हिसाब से, हजरत मरियम का, जिसका जिक्र आ गया, एक ही औरत का जिक्र है कुरान पाक में, नाम के, नाम सिर्फ एक औरत का है। तो हन्ना नाम है इनका, इमरान की बीवी हन्ना जो प्रेग्नेंट थी, तो उसने नजर मानी। उस वक्त, उस जमाने में ये दस्तूर था कि नेक खानदान में अच्छे लोगों में से, दीनदार लोगों में से ऐसे औरतें करती थीं कि अपने पैदा होने वाली औलाद को, वो माबद को, उस वक्त को जो कहें हैकल कहें, उस जमाने में अगर को हैकल था या बैतुल मुक़द्दस था या माबद को या मस्जिद थी, अब हमारा कहें तो खाना काबा था, उनका जो भी खाना काबा था, जो भी उनका, तो वो उसके हवाले कर देती कि ये हमारे माबद की, हमारे हैकल की, हमारे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए ये वक्फ होगा। ये मेरा बच्चा ये जो पैदा होगा, ये मैंने नजर मान लिया है, नजर तो लक माफी बतनी, मैंने नजर मान लिया है जो कुछ मेरे बतन में है, मेरे पेट में है, इसको तेरे लिए नजर मान दिए। मुहर्ररन, मुहर्रर, हर्ररा युहर्रिरु का मतलब होता है, यहाँ जो मतलब है, वैसे तहरीर भी इसी से है, हर्ररा युहर्रिरु तहरीरन, लिखना भी का भी यही मतलब है, हर्ररा युहर्रिरु लिखने को भी कहते हैं, तहरीर इसको कहते हैं। हुर्रियत का लफ्ज आपने सुना हुआ है, हुर्र का लफ्ज आपने सुना हुआ है, हुर्रियत आज़ादी, हुर्रियत आज़ादी को कहते हैं ना, तो ये वो यहाँ से लफ्ज ने हर्ररा युहर्रिरु, मुहर्ररन आज़ाद किया हुआ, हर्ररा उसने आज़ाद किया, मुहर्ररन आज़ाद किया हुआ, कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है इसको आज़ाद किया हो। आज़ाद का क्या मतलब है? दुनियावी सारे कामों से ये आज़ाद है, सिर्फ ये माबद की, हैकल की या अल्लाह के घर की खिदमत के लिए ये वक्फ होगा। ये उन दिनों ये रिवाज था कि अपनी होने वाली औलाद को अल्लाह के लिए नजर कर देते। तो इन्होंने भी, हन्ना ने भी, इमरान की बीवी ने भी अपने वो मन्नत मानी, तो उन्होंने कहा फतकब्बल मिन्नी, बस तकब्बल मिन्नी, तकब्बला या तकब्बल, तू कबूल कर ले, मिन्नी मेरी तरफ से, तू मेरी तरफ से इसको कबूल कर दे, इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। इसको भी हमने पहले बात की हुई है कि जब ऐसा जिक्र आ जाए ना, इन्नका अंत समीउल अलीम, इन्नका भी लगा हुआ है, अंत भी लगा हुआ है, तो ये हसर का मफहूम देता है, जैसे कि वरना आम होता ना इन्नका समीउन अलीम, इन्नका अंत ना लगा होता ना, इन्नका समीउन अलीम होता कि तू, बेशक तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। इसको अंत लगा के अगले दोनों को उन्होंने अलिफ लाम लगा के उसको मरफा बना देते हैं। इसका मतलब होता है तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है। ये हसर पैदा होता है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, पहले शुरू में हमने जब पढ़ा था उलाइकल मुफलिहून, उलाइका मुफलिहून होता, लेकिन उसको हसर करने के लिए उलाइका मुफलिहून वो कामयाब लोग हैं, उलाइका हुमुल मुफलिहून बस यही कामयाब लोग। तो यहां भी ये मतलब होगा कि बस तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है, इसको कबूल कर ले। तो उन्होंने अपने पेट के बच्चे को अल्लाह की नजर दे दिया था, उन्होंने दे दिया था। और फिर क्या हुआ? फलम्मा, फलम्मा पस जब, फलम्मा वज़अतहा, वज़अत, वज़अ
तवाज़ो का लफ्ज़ सुना हुआ है ना, तवाज़ो, आजिज़ी करना, अपने आप को पस्त करना। इसका आम माना यही है, वाज़ा का मतलब है तवाज़ो करना, लेकिन ख़ास इस मौके पर वज़ाअत, इसका ये माना भी होता है बच्चा जनना, बच्चा जनना। मर्द के लिए वादा आ का लफ्ज़ नहीं होता, कि मर्दों में से जनने का अमल होता ही नहीं है ना, ये सिर्फ फीमेल के लिए है ना, तो वादा आती होता है। वादा आ इसके लिए मुज़क्कर के लिए सीगा नहीं लग सकता कि उस मर्द ने जना, ऐसा तो होता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, वादा आती होता है। तो वादा आत, तो उसने वादा आत हा का लफ्ज़ बता रहा है क्या, जना, लड़की पैदा होगी। उसका ख्याल था कि मेरा बेटा पैदा होगा, इस बेटा को अल्लाह की नज़र करूंगी, माबद की खिदमत के लिए, बैतुल्लाह की खिदमत के लिए, जो उस वक्त था उसकी खिदमत के लिए कर। फलम्मा वदअतहा, जब उसने पैदा की लड़की, जब उसने जन्म दी लड़की, हा की ज़मीर है उस पैदा होने वाली बच्ची के लिए, ये बच्ची मरियम है। तो ये बच्ची पैदा होने के लिए, जब बच्ची पैदा होगी, कालत, तो उसने, हन्ना ने बोला, इमरान की बीवी ने कहा, रब्बे, ए मेरे रब, वो ये रब्बे भी रब्बी है, रब्बे इन्नी, बेशक मैंने, वज़ातो, मैंने जना है, हाँ उसको, उनसा, लड़की, ये तो लड़की पैदा हो गई। उनका ख्याल था कि ख्याल ही नहीं होता ना, उसका ख्याल था बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा अल्लाह की राह में दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो लड़की पैदा होगी। अब वो जरा थोड़ी सी परेशान भी हुई कि ये लड़की पैदा होगी, लेकिन उसने फिर भी लड़की भी अल्लाह की राह में देनी थी। उनका मैंने लड़की जान ली। अगला जो सेंटेंस है, वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत, ये उस हज़रत हन्ना का सेंटेंस नहीं है, ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु आलमु, अल्लाह खूब जानता है, आलम अकबर के वजन पर है, आलम खूब जानता है, बिमा वदाअत, जो कुछ उसने जानना था। अल्लाह को तो पता था ना, अल्लाह ने तो बनाया है, तो अल्लाह को पता है। और अगला सेंटेंस भी वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये भी अल्लाह का सेंटेंस है, हज़रत हन्ना का नहीं है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, लैसा नहीं, अज़कर लड़का, कल उन्सा लड़की की तरह, लड़का लड़की की तरह नहीं होता। इसकी खुसूसी जिक्र है। इसका मतलब ये है कि, एक मतलब ये भी है कि जो तुम्हारे जहन में एक लड़का था कि एक लड़का होगा तो उसको मैं करूंगी, तो अब तो ये लड़की हो गई है। उनका नहीं, वो लड़का भी होता ना, इस लड़की जैसा ना होता, ये बड़ी कमाल लड़की है। इसका तर्जमा ये बनता है कि वलैसा करो, वैसे तो ठीक है, लड़का लड़की की तरह नहीं होता, ये तो आम सेंटेंस है, कोई लड़का लड़की की तरह नहीं होता। यहाँ पे बयान करने का ये मतलब है कि तुम्हारे जहन में जिस लड़के का एक कॉन्सेप्ट था ना, ये लड़की उससे 1000 दर्जा बेहतर होगी। ये तो वो लड़की है जो मरियम पैदा हो रही है, जिसको कुरान में एक ही औरत का जिक्र किया है, ये, और ये नबी की माँ होगी, और ये स्पेशल नबी की माँ होगी, मुजदाना तौर पर पैदा होने वाले नबी की बात। और कोई नबी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, आदम अलैहिस्सलाम तो स्पेशल थे, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है इंसानों के। एक खास इंसान, बहुत ही खास तरीके से पैदा होने का इंसान इस लड़की से होगा। तो इसका ये मतलब है वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये वो लड़का लड़की की तरह, हम ये सीधी बात है, लड़का लड़की की तरह नहीं होता, लेकिन ये लड़की बहुत अफजल है। उस जो लड़का तुम्हारे कॉन्सेप्ट में, जहन में था कि ये माबद की खिदमत करेगा, लड़का उसके ख्याल में होगा ना, ये लड़की है आपके, ये क्या खिदमत करेगी, लड़का होता तो पता नहीं क्या क्या कुछ काम करता। तो उन्होंने बताया नहीं, ये लड़की तो बहुत ऊंची है। और फिर अगला सेंटेंस जो है हन्ना का है, ये दरमियान में जिसको जुमला मोतरज़ा कहते हैं, ब्रैकेट में कह लेना, ऊपर चल रहा है कि इन्नी वज़ातुहा उनसा, आगे ब्रैकेट है, वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत वलैसा ज़करु कल उनसा, जुमला मोतरज़ा है, आगे फिर उनका जिक्र है, व इन्नी सम्मैतुहा, उनका जिक्र आ गया। हन्ना कह रही हैं व इन्नी, और बेशक मैंने, सम्मैतुहा, सम्मा युसम्मी, इसम से है ना, नाम देना, नाम रखना, सम्मा युसम्मी का मतलब होता है नाम, सम्मै तो मैंने नाम रखा है, वन्नी सम्मै तो हा, उसका, उस लड़की का, मरियम, मैंने उसका नाम मरियम रखा है। ये जो पैदा होगी है लड़की, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है। व इन्नी, अब मैं अल्लाह की राह में दे रही है, फिर भी दे रही है, व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु का मतलब सबको आता है, मैं पनाह मांगता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसका आज़ा यऊज़ु होता है, उसका रूट लेटर्स आज़ा यऊज़ु, पनाह मांगना। और आज़ा जब होगा, अलिफ जब लगेगा, आज़ा उईज़ु बनेगा,
किसी की पनाह में देना, आदा याऊदो आदा याऊदो बनेगा पनाह में देना, उईदो हा बेका, आऊदो मैं पनाह मांगता हूं, उईदो मैं पनाह में देता हूं, आऊदो मैं पनाह मांगता हूं, उईदो मैं पनाह में देता हूं, उईदो हा इसको मैं पनाह में देता हूं, व जुर्रियतहा, जुर्रियत कहते हैं औलाद को, ओरिजिनली तो जुर्रियत औलाद छोटी औलाद को कहते हैं ये, लेकिन बड़ी औलाद के लिए भी मुस्तमल है, कुरान में बड़ी औलाद के लिए भी ये इस्तेमाल हुआ है, व जुर्रियतहा, और इसकी औलाद को, अभी मरियम पैदा हुई है, इसके लिए हजरत हन्ना फरमा रही हैं कि मैं इसको भी और इसकी अगर आइंदा कोई नस्ल चलनी है, जुर्रियतहा, इसको मैं पनाह में देता हूं, देती हूं, औरत है, मिनश शैतान रजीम, शैतान मरदूद से, रद्द किए हुए मरदूद शैतान से की शर से इसको मैं पनाह में देती हूँ। वही तो हा बिका, बिका अल्लाह के, आऊदु बिल्लाहि, बिल्ला अल्लाह की पनाह होती है ना, आऊदु बिक, यहाँ वही तो हा बिका, अल्लाह से खिताब है कि तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। तो ये उन्होंने उसके ज़हन में था कि ये बेटा होगा तो मैं दूंगी, वो बेटी होगी, परेशान तो हुई, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि ये बेटी बहुत ऊंची है, और फिर बता, और उसने नाम मरियम उन्होंने रखा था, और उसको फिर अल्लाह की राह में दे दिया। कि अल्लाह की राह में क्या दिया, माबद के हवाले करना पड़ता है। तफसीरों में लिखा हुआ है माबद के, ये बेवा थी, हजरत हन्ना जो थी ना, ये मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई तो बेवा थी। इमरान जिनका जिक्र है ना, मरियम इमरात इमरान, वो उस माबद के इमाम थे या उसके थे, वो फौत हो चुके थे। अब ये माबद में ही लेकर गई हैं, वहाँ के माबद में इनके हजरत मरियम के खालू थे, ये हन्ना के बेनोई थे, हन्ना के बेनोई भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वक्त के नबी थे, वो भी उसी माबद में थे, और उनके हवाले किया। आगे जिक्र आ रहा है, उनका जिक्र दोबारा आ रहा है, तो उन्होंने उनके हवाले किया, परवरिश भी फिर उन्होंने की, और फिर उधर ही उसी माबद में या उसके साथ कोई कमरा होगा, हुजरा होगा, जिक्र आ रहा है, मेहराब का जिक्र है, उसी मेहराब में वो पली बड़ी जवान हुई, जिक्र हुआ है मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह के हवाले तो कर दिया, फतक़ब्बलहा, बस तक़ब्बलहा, अल्लाह ने कबूल कर ली उसको, बेकबूलिन हसनिन, कबूलिन हसनिन, बेहतरीन कबूलियत, कबूलिन हसन, अल्लाह ने उनकी ये कुर्बानी, ये जो अल्लाह की राह में बेटी उन्होंने दी, उन्होंने अल्लाह ने कबूल कर ली। कैसी कबूल की, कबूलिन हसनिन, बेहतरीन तरीके से कबूलियत अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाई। व अम्बतहा, अम्बता नबात, ये जो नबातात, ये चीजें उगती हैं नबातात ही कहते हैं ना, वह अम्बता का मतलब होता है जमीन से उगना, नश्वो नमा पाना, इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, यहाँ इस्तेमाल हुआ है। वह अम्बतहा, उसको नश्वो नमा दी, अल्लाह ने दी, वह नश्वो नमा दी, नबातन हसना, बेहतरीन नश्वो नमा, जैसे कबूलिन हसन है ना, बेहतरीन कबूल करना, नबातन हसनन, बेहतरीन नश्वो नमा। इस मरियम को अल्लाह पाक ने बढ़ोतरी दी, नश्व नमा दी, और बेहतरीन नश्व नमा दी, और वकफ़लहा ज़करिया, उसका सरपरस्त जो बनाया ज़करिया को, उनके खालू थे, हज़रत मरियम के खालू थे। वकफ़ला, कफ़ला युकफ़िलु, कफील अब भी कहते हैं, जो सऊदी अरब में जो आते हैं, सरपरस्त, ख्याल रखने वाला, निगरान, उसको कहते हैं, कफील को कहते हैं। वकफ़लहा, उसकी कफालत करने के लिए ज़करिया, उनके खालू थे मरियम के, या हन्ना के बेनोई थे, उनकी क्या कहें, उनकी कफालत में दी गई। अब ये उन्होंने पाला, उनके पलने का जिक्र भी अल्लाह ने किया कि बेहतरीन उनकी परवरिश की गई। अगला सेंटेंस शुरू हो गया। अब जब वो बालग हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो माबद में ही होती थी, उधर ही इबादत करती थी, या वहाँ का कोई अगर कोई काम होता होगा तो वो करती होंगी, लेकिन उनकी रिहाइश हज़रत मरियम की जवान भी हो गई, उधर ही होती थी। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बांजी के पास या अपनी बीवी की बांजी के पास जाते थे। कुल्लमा, जब भी, दखला अलैहा, दखला वो दाखिल हुआ, अलैहा उस पर, यानी मरियम अलैहिस्सलाम पर जब ये दाखिल होते थे ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल मेहराबा, उस मेहराब में, उस जगह पे जहाँ हज़रत मरियम की रिहाइश थी। मेहराब, मस्जिद का मेहराब हम मेहराब कहते हैं, इसका मेहराब हर्ब लफ्ज़ सुना होगा आपने, हर्ब जंग को कहते हैं ना, हर्ब जंग को कहते हैं ना,
تو محراب مسجد کی یا معبد کی وہ جگہ جہاں پہ شیطان سے انسان جنگ کرتا ہے، اس لیے محراب کہتے ہیں کہ اپنے ہوائے نفس سے اور شیطان سے وہاں جنگ کرتا ہے. عبادت کی جگہ ہوتی ہے نا، تو ہوائے نفس سے اور شیطان سے وہ جنگ کرتا ہے، اس لیے اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے، مقدس ترین جگہ کو محراب کہا جاتا ہے. آپ ترجمہ حجرہ کر لیں اس کو، ان کا حجرہ ہے، لیکن اس کے روٹ لیٹر عربی ہے وہ. تو جب بھی اس حجرے میں داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام، وجد عندها رزقا، وجد یجدو پا لینا، وجد یجدو اس نے وجد عندها اس کے پاس رزقا، رزق. وہ جب ان کے پاس جاتے تھے، وہاں ہوتی تھیں، تو یہ نگران تھے، اس کے سرپرست تھے، تو جاتے ہوں گے، جاتے تھے تو ان کے پاس مختلف طرح کے پھل پڑے ہوتے تھے. رزق یہاں تو پھل کا ذکر نہیں ہے، لیکن تفاسیر میں لکھا ہوا مختلف طرح کے پھل ہوتے تھے. اور پھل بھی کیسے ہوتے تھے کہ ضروری نہیں کہ اس موسم کے پھل ہوں. مثال کے طور پر آج کے دن میں آم، سردیوں میں آم پڑے ہوئے ہوں تو عجیب سا لگے گا نا کہ سردیوں میں آم کہاں سے آگے. تو وہاں پہ وہ ان کا رزق دیکھتے تھے، پھل دیکھتے تھے یا کچھ پڑا ہوا دیکھتے تھے کہ وہ کہتے کہ میں تو لایا نہیں ہوں، کون لے کے آیا اس کے لیے، اور یہ اسپیشل پھل ہے. وجد عندها رزقا، رزق. تو وہ پھر انہوں نے حیران ہو کر کے پوچھا، انہوں نے قالا، انہوں نے پوچھا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، انا، انا اس کو کہتے ہیں ظرف، ظرف ہے، ظرف زمان، ظرف مکان دونوں جگہ ہوتا ہے. انا کہ کہاں سے یا کیسے، یہ انا لک ھذا، یہ چیز کہاں سے آئی ہے یا کیسے آئی ہے، یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی. اس تو انا لک ھذا، لکے تیرے لیے، لکے فیمیل کے لیے کا نہیں ہوتا نا، کہ ہوتا ہے، لکے تیرے لیے، ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے آئی ہے یا کیسے آ جاتے ہیں، دونوں ترجمہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا، قالت، اس مریم نے فرمایا، ہوا یہ چیز من عند اللہ. عند، عند بھی یہ ظرف زمان ظرف مکان دونوں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور یہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ بے موسمی پھل ہوتے تھے، وہ ان کے پاس پہنچے ہوتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے. آگے اللہ سے اگلا سینٹینس بتا رہا ہے کہ یہ بے موسمی پھل ہی ہوتے ہوں گے. صرف کھجور نہیں تھے، صرف کھجور ہی نہیں تھے. نہیں بے موسمی پھل، کھجور کا ذکر تو شاید میں نے نہیں پڑھا، طرح طرح کے پھل ہوتے تھے، یہ اگلا سینٹینس بتا رہا ہے. اس لیے کہ آگے جو دعا ہے نا حضرت زکریہ کی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ بے موسمی پھل جو ہے نا یہ تھے. آگے میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. یہ حضرت مریم علیہ السلام بھی فرما رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ترجمہ سب کو آتا ہے، یہ جگہ جگہ آیت لکھی ہوتی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ان اللہ بے شک، یرزق، رزق، یرزق کا مطلب ہے رزق دینا. یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام فرما رہی ہیں بغیر حساب. ترجمہ تو اس کا بغیر حساب ہے، بغیر شمار کے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر موسم کے. یہ اس کو بغیر موسم دیکھیں نا، آج یہ کیا حساب کتاب ہے کہ آم کیسے پڑے ہوئے ہیں. زمیندار حساب کتاب کر کے لیتا ہے نا، یہ موسم، اس موسم کا اب گندم لگائی جائے گی، اب مکئی لگائے، چنا اب لگایا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب کرتا ہے نا. تو بغیر حساب کتاب کے آج کے موسم میں اگر وہ گندم بونے کے وقت میں وہ اگر مکئی بو دے گا یا چنا بو دے گا تو اس کا تو ایسے نہیں ہوگا نا، اس نے اپنا حساب کتاب کوئی نظام رکھا ہوگا نا. تو اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں یہ جو میرے پاس پھل ہے اللہ دے رہا ہے، بغیر حساب کے دے رہا ہے. مطلب سردیوں میں آم دے رہا ہے یا کھجور دے رہا ہے، جیسے کھجور کا موسم نہ ہو مثال کے طور پر، ایسے بھی ہے کھجور دے رہا ہے، بغیر دے رہا ہے. تو آگے خصوصی طور پر یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن آگے میں جلدی سے سٹیپ کرتا ہوں. وہاں ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک، ہنا یہ بھی ظرف زمان ظرف مکان، وہاں اسی جگہ بھی، اسی وقت بھی، وقت ظرف زمان و مکان دونوں ہیں، اسی وقت یا اسی جگہ بھی، ہنالک اسی جگہ، دعا کی، پکارا، دعا یدعو زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا. انہیں دیکھا نا، حضرت زکریا کی عمر اس وقت 120 سال ہے. یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے ان کی عمر 120 سال ہے.
बीवी बूढ़ी है और बांझ है और इनकी भी औलाद कोई नहीं है। ज़ाहिर है हर आदमी को ख्वाहिश तो होती है औलाद की ख्वाहिश तो होती है। नबी थे, औलाद की ख्वाहिश तो इनको भी होगी, नबियों ने मांगा है, इन्होंने भी मांगा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद तो वो मशहूर है, अपना बेटा इस्माइल के लिए उन्होंने दुआ फरमाई थी, तो उनकी ख्वाहिश तो थी, शायद दुआएं भी मांगी होंगी, लेकिन ये खास जगह उसने दे, जब उनको ये देखा ना, बगैर मौसम के इनको फल मिला है इस मरियम को इधर, तो मेरा भी मौसम औलाद का नहीं है, तो उनको फौरन ख्याल आया कि मैं भी बेमौसम और फल मांगता हूं अल्लाह से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आगे बता रहा है कि मैं भी बेमौसम वाला फल, मेरा मौसम तो नहीं है, आगे जिक्र आ रहा है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी भी आखिर कहते हैं जिसकी औलाद नहीं हो रही, वो भी बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन उन्होंने वहां पे पुकारा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अपने रब को पुकारा। क्या पुकारा? रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अपनी तरफ से बेमौसमी औलाद मुझे भी दे ही दे। आगे उन्होंने अपने बेमौसम होने का जिक्र किया, आगे मैं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ तर्जमा पर काला, उन्होंने फरमाया रब्बे, रब्बी है ये भी, रब्बे ए मेरे रब, हबली मुझे वहाबा यहाबो हमने पहले पढ़ा हुआ, हबली मुझे अता फरम मिल्लदुन का, अपनी सरकार से, अपने खजाने से, अपने पास से, ज़ुर्रियतन औलाद, तय्यबा पाकीज़ा, मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। 120 साल का नबी और बूढ़ा और बीवी, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। उन्होंने जब ये बेमौसमी, ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारे उलमा ने बताया हुआ है कि कोई वक़्त होता है कबूलियत का। देखें ना, हमारी अहादीस में है ना, फलां वक्त में दुआ कबूल होती है, फलां वक्त में दुआ, 2 सजदों के दरमियान कबूल होती है, 2 खुतबों के दरमियान दुआ कबूल होती है, या फलां सुबह के वक्त या सहरी के वक्त दुआ कबूल। तो कोई कबूलियत का वक्त भी होता है और कबूलियत की जगह भी होती है, खाना काबा के पास दुआ कबूल होती है, मस्जिद में दुआ कबूल होती है, फलां जगह पे दुआ। तो ये उन्होंने इसलिए दुआ की कि ये कबूलियत वाली जगह है। इस वलीउल्लाह के अल्लाह की वली थी, एक वाहिद वलिया औरत है जिनका नाम कुरान पाक में मैंने, हज़रत मरियम का, नबिया तो नबी की माँ है, लेकिन अल्लाह की वलिया तो है ना, तो उनको अल्लाह पाक अपने खजाने से रिज़्क़ अता फरमा रहा है वहां पे, तो वलिया तो है ना। ये इसको करामत कहते हैं। अच्छा, ये भी ऐसे जिक्र कर रहा हूँ, एक मौजज़ा होता है, एक करामत होती है। मौजज़ा नबी के हाथ से सादर होता है, नबी खुद नहीं करता, अल्लाह करता है। मौजज़े का फ़ाइल अल्लाह होता है, ये याद रखें। जो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मौजज़ात हैं वो किए अल्लाह ने हैं, हजूर के हाथ से सादर हुए। तो मौजज़ा जो नबी के असा फेंकने पे वो जो सांप बनता था, कौन बनाता था? मूसा अलैहिस्सलाम जब पहने, अल्लाह बनाता। तो मौजज़ा अल्लाह फ़ाइल होता है, नबी के हाथ से सरजद होता है। और जो वली के हाथ से जो कोई ऐसा मौजज़ा किसको कहते हैं? जो हमें आजिज़ कर दे, जो कोई इंसान काम ना कर सके, ऐसा काम अगर किसी वली के हाथ से सरदा दो, उसको करामत कहते हैं। तो ये करामत, ये अल्लाह भेज रहा है, इंदल्लाह, अल्लाह ने कहा, अल्लाह भेज रहा है, तो इसलिए ये करामत थी, करामत वलिया के पास करामत थी, हम उसके नाम लगाते हैं, इसका फाइल अल्लाह होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मौजज़ात हैं, हम कहते तो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, लेकिन उनका फाइल अल्लाह है, काम करने वाला अल्लाह है, उनके हाथ से सरदार होते हैं। तो उन्होंने वहां जब ये मौजज़ा देखा उन फलों वाला, बेमौसमी फलों वाला, तो वहां इजाबत की घड़ी भी थी और इजाबत की जगह भी थी। तो इसलिए शायद उन्होंने दुआ की, उन्होंने इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआ कबूल करने वाला है। अब अगली बात, फनादतहुल मलाइकतु, फनादत, नादा उसने पुकारा, नादत उस फीमेल ने पुकारा है, ऐसे नादा, कालत, नादा उसने पुकारा, नादत तो फीमेल के लिए, जब नादत एक के लिए फीमेल की, फनादत हुल मलाइका, तो मलाइका जो है फरिश्ता, मलक की जमा फरिश्ता, और इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा मुकस्सर अरबी में मुअन्नस शुमार होती है, बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि जमा मुकस्सर जब भी अरबी में इस्तेमाल होती है मुअन्नस इस्तेमाल होती है, इसलिए फनादत हुल मलाइका, तो मलाइका ने, लेकिन हम तर्जमा करेंगे तो फरिश्तों ने उसको पुकारा,
निदा दी, आवाज निदा, नादा निदा देना, पुकारना, उसको पुकारा, मलाइका ने पुकारा, उन्होंने दुआ कर दी थी। मलाइका तो वह हुआ कायमुन, वह हुआ और वो कायमुन, काम यकूमो खड़ा हुआ, कायम, कायम उर्दू में इस्तेमाल, ये चीज कायम है, खड़ी हुई है। वह हुआ कायमुन, वो खड़े थे, युसल्ली फिल मेहराब, मेहराब में या हुजरे में, युसल्ली, सल्ला युसल्ली नमाज पढ़ना, सलात कहते हैं ना नमाज को, सल्ला युसल्ली, तो वो नमाज पर, नमाज में खड़े थे, अपनी नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों ने आवाज दी, पुकारा, क्या पुकारा? अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरो का, बशरा युबश्शिरो, बशारत देना, पहले पढ़ा हुआ है, बशरा युबश्शिरो का, तुझे बशारत देता है पे यहया, बेटे की। यहया बेटे का नाम, अल्लाह पाक ने बेटे का नाम भी रख दिया, उनको फरिश्तों ने नाम भी बता दिया कि तेरा बेटा होगा बियहया, यहया, और उसके आगे 5 खुसूसियात गिनी है अल्लाह ने यहया की। ये बेटा कैसा बेटा होगा? मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, पहला काम उसका क्या होगा? मुसद्दिक, मुसद्दिक किसको कहते हैं? शायद पहले भी हमने किया, सद्दका युसद्दिकु, तस्दीक करना, है ना, पढ़ा हुआ है ना हमने, सद्दका युसद्दिकु, मुसद्दिक तस्दीक करने वाला, मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह, कलिमतिन मिनल्लाह की तस्दीक करने वाला, कलमा अल्लाह का कलमा, अल्लाह की तरफ से कलमा। आम तौर पर कलिमतिन मिनल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उलमा ने 3 तर्जमे किए हैं। कलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलमा, ये कलमा तौहीद भी हो सकता है, उसकी तस्दीक करने वाला। दूसरी ये बात, किताबुल्लाह की तस्दीक करने वाला, जो तौरात ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील आती है या उस वक्त की जो किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाला। और तीसरा हमारे उलमा ने लिखा है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कि खसूसी तौर पर अल्लाह के कलमे से पैदा हुए हैं, अल्लाह की खास शुफ से पैदा हुए हैं। वो सूरह मरियम में अल्लाह ने वहाँ तौफीक दी वहाँ पहुँचने की, अल्लाह पाक ने खुसूसी तौर पर, अल्लाह पाक ने मरियम में ये रूह फूंकी गई थी या किया गया था, तो इसलिए उनका कलिमतुल्लाह कहा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलमा, उनका खास लक़ब है। तो ये उनकी तस्दीक करने वाला होगा यहया। हजरत मरियम अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, अभी ईसा की पैदाइश का जिक्र नहीं है, अभी तो वो अपने माबद में पड़ी हुई हैं, अपने जिक्र अज़कार में लगी हुई हैं। तो यहया अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो रहे हैं, इनके खालू का बेटा, खालू का बेटा होगा ना, इनके खाला का बेटा होगा, तो वो पहले पैदा होगा। अल्लाह पाक ने उनको बशारत दी, वह सैयदन, सैयद सरदार को कहते हैं, दूसरी हिस्सेबत वो सरदार होगा। हसूरन, हसूर, हसर, हिसार किसको कहते हैं? किला बाला असार के हैं, हसार, बाला हसार, जिसकी वो दीवारें बहुत ऊंची हों, बाला ऊंचा, हसार, हसार कहते हैं ना कि रुकावट। वह हसूरन, वो रुकावट वाला होगा, गुनाहों से रुकावट, हर किस्म की गंदगी से रुकावट वाला होगा, वो बचा हुआ होगा, महसूर होगा, हर किस्म की गंदगी से महसूर होगा, हर किस्म के गुनाह से वो बचा हुआ होगा। ये तीसरी सिफत। वह नबीयन, नबी भी होगा, मिनस सालिहीन, साले भी होगा, साले। तो ये 5 सिफतें अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने आवाज़ दी है। तो अल्लाह पाक गिनवा रहा है कि तेरा एक बेटा होगा जिसका नाम यहया होगा, उसकी 5 सिफतें हैं, वो मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह होगा, सैयद होगा, हसूर होगा, नबी होगा, मिनस सालिहीन, सालिहीन में से होगा। बात तो नबी है आगे, ये बात सुनने वाला कौन है? हज़रत ज़करिया। दुआ तो उन्होंने कर दी थी, अल्लाह पे उनका यकीन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हैरान तो हुए ना कि बेमौसमा फल इनको भी मिलने लगा है ना। नबी थे, जानते थे अल्लाह कर सकता है, लेकिन उसको खुशी में वो मज़ीद तस्दीक चाहते हैं। आगे उन्होंने निशानी भी मांगी है, आगे आगे हम कहते हैं कि वो मुझे निशानी अता फरमा। वो क्या फरमाते हैं? काला, उन्होंने फरमाया रब्बे, ए रब, अन्ना, वही लफ्ज़ आ गया है, कैसे और कहाँ से, ये कैसे होगा? यकून ली, मेरे लिए होगा, काना यकून से, ली मेरे लिए, गुलामुन, मेरा बेटा कैसे हो? बेटे का नाम जिक्र कर दिया ना, यहया मुज़क्कर नाम है, तो यहया बेटे का जिक्र कर दिया, सारा बेटा। मिनस सालिहीन, पता चल गया कि बेटा होगा। मिनस सालिहीन, सालिहात नहीं है, सालिहीन है, और सैयद, सैयदा नहीं है, इसलिए पता चल गया कि बेटा होगा यहया नाम का। और ये कैसे बेटा होगा? वक़द बलगनी अल किबर, वक़द बलगा, बलगा पहुंचा, कद बलगा पहुंच चुका, बलगनी मुझे पहुंच चुका,
वक़द बलगनी, मुझे पहुंच चुका क्या, अल किबर, बुढ़ापा, मुझे तो बुढ़ापा पहुंच चुका है, यानी बेमौसम है, औलाद होने के काबिल नहीं है। वमराती, और मेरी औरत, वमरा इमरात, वमराती मेरी औरत, आकिर, आकिर कहते हैं जिसका बच्चा ना हो, हैं, बांझ जिसको उर्दू में कहते हैं, और मेरी बीवी बांझ है, ये बच्चा कैसे होगा। अल्लाह से पूछते हैं कोई खास बात होगी, मैं हम जवान हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना, ये कैसे होगा। वो जरा हैरान हुए तो अल्लाह पाक ने काला कजालिक, ऐसे ही तुम ऐसे ही बूढ़े होगे, तुम्हारी बीवी भी ऐसे, काला कजालिक, ऐसे ही, कजालिक का तर्जमा आता है ना, कजालिक ऐसे ही, अल्लाह यफअलु मा यशा, कज़ालिक अल्लाह यफअलु मा यशा, अल्लाह करता है जो कुछ वो चाहता है। उसे क्या मजबूरी है कि बांझ से पैदा नहीं होता, वो तो कहीं से भी वो फ्रॉम नथिंग भी पैदा कर सकता है, अल्लाह ने नथिंग से पैदा किया। कज़ालिक ऐसे ही होगा, तुम बूढ़े भी होगे, आखिर भी होगी तुम्हारी बीवी, अल्लाह चाहता है पैदा कर लेगा। फिर उन्होंने खुश होकर, यार फिर मुझे कोई निशानी भी बता दो ना, खुश हो रहे हैं, मुझे कोई ऐसा कहो ना, कोई वो हैरान हुए देखें ना, जब मुझे कहा जाएगा कि हाँ तो मैं तुम्हारे लिए मैं गाड़ी लेके आऊँगा, ये मेरा भाई कहता है कि मैं आपके लिए गाड़ी लाऊंगा, यार कब लाओगे मुझे बताना, किस दिन होगा, खुश होता है ना आदमी। वो भी कहते हैं काला रब्बि जअल्ली आया, अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी भी बता दे कि कब होगा, मुझे पता चल जाए ना। काला, उन्होंने कहा रब्बि जअल्ली, ए रब कर दे, इजअल्ली मेरे लिए कर दे, आया कोई निशानी बता दे कि हाँ मेरा अब औलाद होने लगी है, वो खुश होगा ना। तो अल्लाह पाक ने निशानी भी बता दी। काला, अल्लाह ने कहा आयतुका, तेरी निशानी क्या होगी, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, अल्लाह तुकल्लिमा, कल्लमा युकल्लिमु, कलाम करना, बोलना, अल्लाह तुकल्लिमन नासा, तू लोगों से कलाम नहीं कर सकेगा, सलासत अय्यामिन, कि जब ये तुम्हारा बेटा पैदा होने का चांस होगा ना, तो 3 दिन तक तुम लोगों से बात नहीं कर सकोगे, उनकी जुबान बंद हो जाएगी। इल्ला रमज़ा, सिवाय इशारों के, रम्ज आंखों से, हाथों से या सर के इशारे से कोई बात की जाए उसको रम्ज कहते हैं, उर्दू में रम्ज इस्तेमाल होता है। तो इल्ला रमज़ा, सिवाय इशारों के तुम लोगों से बात नहीं कर सकोगे 3 दिन तक, ये निशानी थी। लेकिन आगे वज़कुर रब्बका, ये निशानी देकर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि इन 3 दिनों में तू बात तो नहीं कर सकेगा, लेकिन वज़कुर रब्बका, जिक्र कर सकेगा। वज़कुर रब्बका, जिक्र कर सकते थे, बातें नहीं कर सकते थे। वसब्बिह कसीरन, अपने ये 3 लोगों से तो तू बात कर नहीं सकेगा, अल्लाह का जिक्र, जिक्र तो वैसे भी याद को कहते हैं, ऐसे ठीक है, याद को कहते हैं कि अल्लाह को याद तो ज़हन में भी रख सकता है ना। वज़कुर रब्बका, अपने रब को कसीरन, खूब याद कर, ये शुक्र अदा करना कि बेमौसम तुम्हें अल्लाह पाक ने औलाद दे दी है। वसब्बिह, और तस्बीह कर, सब्बिह पहले भी शायद जिक्र किया है, सब्बहा युसब्बिहु, तस्बीह करना, इसका तर्जमा हम करते हैं पाकी बयान करना। 2 लफ्ज़ हैं, एक है तहमीद, हम्द करना, एक है तस्बीह, पाकी बयान करना। हम्द बयान करने का मतलब होता है तारीफें बयान करना, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत मेहरबान है, बहुत गफूर है, ये हम्द है। और तस्बीह क्या है, पाकी बयान करना, अल्लाह बुराई से पाक है, झूठ से पाक है, इसलिए तर्जमा, तस्बीह का हम तर्जमा कहते हैं पाकी बयान करना, कि नेगेटिव की नेगेशन को तस्बीह कहते हैं और पॉजिटिव की उसको बयान करने को हम्द कहते हैं। तो तस्बीह, अल्लाह की पाकी बयान कर, बिल अशी, अशी कहते हैं शाम का वक्त, शाम का सूरज ढलने के बाद से रात तक का वक्त, इसको अशी, शाम का वक्त आमतौर पर। वाल इबकार, इबकार कहते हैं सुबह तुलू होने से ज़वाल तक का जो वक्त है, सुबह का वक्त जो है उसको इबकार कहते हैं। आसानी है, सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान कर। तो ये क्यों बयान हुआ है, ये ईसाइयों को बताया जा रहा है, ये तर्जमा समझ, ईसाइयों को बताया जा रहा है कि ये देखो ना, ये तुम याद करो ना कि ज़करिया का बेटा कैसे मौजज़ाना तौर पर पैदा हुआ था। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए तो वो इलाह नहीं बन गए, ये अल्लाह का काम है, जिस तरह मर्जी है कर सके। ईसा को भी यहाँ जिक्र नहीं आया अभी,
لیکن عیسائیوں کو وہ بنیاد بنائی جا رہی ہے، آگے ڈسکشن بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو اس معجزانہ طور پر جو پیدا ہو گیا کہ مریم علیہ السلام، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا تو اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا بیٹا، اس طرح اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ معجزانہ طور پر زکریا کو بھی اولاد دے دی اور معجزانہ طور پر مریم کو بھی بغیر شادی کے، بغیر اس کے ہسبینڈ کے بھی اللہ پاک نے اولاد دی، اس لیے اس کو بیان کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ رکوع ہم نے پڑھا، آگے یہی آگے اسی کی ڈسکشن ہے، یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو ان کے انٹریکشن ہے نا، اسی کی یہ آگے اگلی آیت میں 30-35 آیات ہیں، یہ اس کی متعلق ہیں، اللہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔